کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ پہیے الگ الگ منزلوں کی جانب سفر کر رہے ہوتے ہیں مگر گاڑی پھر بھی چلتی رہتی ہے. لیکن سوچئے اگر دونوں پہیوں کی منزل بھی ایک ہو اور راستہ بھی، سواری بھی ایک ہو اور سوار بھی ایک جیسے، تو زندگی کتنی دلچسپ ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں ان میاں بیوی جوڑوں کی جو دونوں سیاسی گھوڑے کے شاہ سوار ہیں. کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو اینکرز اور سیاستدان میاں بیوی کے بارے میں بتا چکے ہیں، یعنی وہ سیاستدان جن کی بیویاں اینکرز ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی بیویاں بھی سیاستدان ہیں، یعنی آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں مشہور سیاستدان جوڑے کون کون سے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک نیوزن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں. سب سے پہلے ذکر ہو جائے ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کا. ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر رتو ڈیرو میں پیدا ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا نام ہے جسے کبھی بھولا یا مٹایا نہیں جا سکتا. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے دور میں وزیر خارجہ تھے. پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. یہ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر بھی رہ چکے ہیں اور 1973 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ نصرت بھٹو کا تعلق ایران سے تھا. بیگم نصرت بھٹو 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئی. یہ پاکستان کی خاتون اول بھی رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا حصہ بھی رہ چکی ہیں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1988 سے 1990 تک سینئر وزیر بھی رہ چکی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک مشہور سیاسی جوڑا تھا. اسی طرح ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور داماد آصف علی زرداری بھی سیاسی میدان کے شاہ سوار بنے. بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی. یہ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کی صاحبزادی ہیں. ان میں بھی اپنے والدین کی طرح سیاسی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی رخ پھونکی. یہ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی. پہلی دفعہ 1988 میں ان کی حکومت 2 سال ہی چل سکی. دوسری مرتبہ 1993 سے 1996 تک. 1987 میں ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی. آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے. بے نظیر بھٹو ان سے عمر میں 2 سال بڑی تھی. یہ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد یہ 2008 میں پاکستان کے صدر بنے. اس وقت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں اور قومی اسمبلی کا حصہ بھی. صرف آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو ہی نہیں بلکہ نواز شریف اور کلثوم نواز کا جوڑا بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے. نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے. یہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے واحد پاکستانی سیاستدان ہیں. یہ پہلی مرتبہ 1990 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 1993 تک رہے. دوسری مرتبہ 1997 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 1999 تک رہے. جبکہ تیسری دفعہ یہ 2013 سے 2017 تک وزیر اعظم رہے. ان کی بیگم کلثوم نواز سے 1971 میں شادی ہوئی. بیگم کلثوم نواز کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 3 مرتبہ خاتون اول رہ چکی ہیں. بیگم کلثوم نواز 29 مارچ 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئی. جب 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا گیا تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر بنی. انہوں نے پوری پارٹی کو سنبھالا، تتر بتر ہونے سے بچایا اور بھرپور طریقے سے سیاسی مہمات کو چلایا. 2017 میں جب نواز شریف نااہل ہوئے تو کلثوم نواز نے NA 120 سے الیکشن لڑا تھا. الیکشن کی مہم کے دوران ہی انہیں گلے کا کینسر ہو گیا تھا. یہ علاج کروانے بیرون ملک چلی گئیں اور واپس نہ آ سکی. پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشد کو شکست دے کر قومی اسمبلی کی رکن بن گئی لیکن کبھی حلف نہ اٹھا سکی. 2018 میں گلے کے کینسر سے ہی ان کی وفات ہو گئی. نواز شریف اور کلثوم نواز کی طرح ان کی بیٹی اور داماد بھی سیاستدان ہیں. مریم صفدر 28 اکتوبر 1973 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی.
मरियम नवाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज की बेटी हैं। उन्होंने 1992 में कैप्टन सफदर से शादी की। उनके और कैप्टन सफदर की शादी के बारे में बहुत सी चहमगोइयां हैं, लेकिन अभी ये हमारा मौजू नहीं। कैप्टन सफदर 19 जनवरी 1964 को मानसहरा में पैदा हुए। ये साबिक आर्मी ऑफिसर भी हैं। ये 2008 से 2018 तक पाकिस्तान के कौमी असम्बली का हिस्सा रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले ये पनामा केस की जद में आ गए और फिर इलेक्शन हार गए। मरियम नवाज भी सियासत में बहुत एक्टिव नजर आई। नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद पार्टी की बागडोर उन्होंने संभाल ली। मरियम नवाज ने 2018 का इलेक्शन NA 127 से लड़ना था, लेकिन ये भी पनामा केस की जद में आकर नाअहल हो गई। लेकिन बहरहाल वो पार्टी की नायब सदर और एक्टिव सियासतदान हैं। कभी कभी सियासी मसलहत के बायस उन पर कुछ महीने की खामोशी छा जाती है, लेकिन पार्टी के अहम सियासी फैसले अब भी वही करती हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम महानूर सफदर, मेहरुनिसा और जुनैद सफदर हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ और मुसर्रत ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ 1949 में पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। ये पहली मरतबा 1993 में कौमी असम्बली के रुकन बने और दूसरी मरतबा 1999 में। इसके बाद ये 2002 से अब तक कौमी असम्बली के मेंबर हैं। इसके अलावा ये कई दफा वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। इनकी अहलिया मुसर्रत ख्वाजा का ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये भी 2018 से कौमी असम्बली की रुकन है। दानियाल अजीज और महनाज अकबर का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। वैसे तो ये पार्टियां बदलते रहते हैं, लेकिन आखिरी मर्तबा जब ये मंजर आम पर आए थे तो नवाज शरीफ के गुण ही गाते थे। आजकल ये न जाने कहाँ गायब हैं। दानियाल अजीज 25 फरवरी 1965 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये 1997 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं। ये मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी रह चुके हैं। ये नाअहल होने की वजह से 2018 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। यही वजह है कि उन्होंने नारोवाल के हल्का NA 77 से अपनी अहलिया महनाज अकबर को इलेक्शन पर खड़ा किया। महनाज अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद रशीद को शिकस्त देकर इलेक्शन जीत लिया। महनाज अकबर इस वक्त कौमी असम्बली की रुकन हैं। सैयद फखर इमाम और आबिदा हुसैन पाकिस्तान के मशहूर सियासी जोड़ों में से हैं। सैयद फखर इमाम पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान हैं। ये 1985 से 1986 तक कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। ये कई मरतबा MNA रह चुके हैं। सैयद फखर इमाम ने 2018 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रज़ा हयात को शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये इस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनकी अहलिया सैयदा आबिदा हुसैन भी पाकिस्तान की बहुत सीनियर सियासतदान हैं। ये कई मरतबा कौमी असम्बली की मेंबर भी रह चुकी हैं। कई दफ़ा वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। ये अमेरिका में भी पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत से अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुकी हैं। उनकी साहबजादी सुगरा इमाम भी परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर रह चुकी हैं। जरताज गुल वजीर और हमायूं उखुंद। जरताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम और सीनियर रहनुमा हैं। ये 2018 में कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। उन्होंने साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लोगारी को शिकस्त दी। ये इस वक्त वजीर ममलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली भी हैं। उन्होंने 2010 में हुमायूं अखुंद से शादी की। हुमायूं अखुंद ने 2013 में डेरा गाजी खान से सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा, लेकिन इन्हें शिकस्त हो गई। अब उनकी अहलिया जरताज गुल इलेक्शन जीतकर वजीर बन चुकी हैं। PTI से ही ताल्लुक रखने वाला एक और जोड़ा सियासत में बहुत सरगर्म है। जमशेद चीमा ने NA 127 से कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा था और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली परवेज मलिक से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2013 के इलेक्शन में भी ये सूबाई असम्बली की सीट से इंतखाब हार गए थे। वो खुद तो किसी असम्बली का हिस्सा न बन सके, लेकिन इनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस निशस्त पर MPA हैं। इस वक्त ये हुकूमत पंजाब की स्पोक्स पर्सन भी हैं। नजम सेठी वैसे तो एक सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका शौक उन्हें सियासत की राहदारियों में घसीट लाता है।
नवाज शरीफ का इत्तेमाद जीतकर ये 2013 में पंजाब के निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इनकी अहलिया का ताल्लुक भी सहाफत से है और फ्राइडे टाइम्स की एडिटर हैं। लेकिन जुगनू मोहसिन एक मंझी हुई सियासतदान भी हैं। ये अब भी आज़ाद हैसियत से पंजाब असेंबली की रुकन हैं। इसके अलावा कुछ और जोड़े भी हैं, जैसा कि शाइस्ता परवेज और परवेज मलिक, दोनों ही इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी असेंबली के रुकन हैं। बल्कि इनका बेटा अली परवेज मलिक भी इलेक्शन जीतकर असेंबली के मौजूदा रुकन बन चुके हैं। आयला मलिक और यार मोहम्मद रिंद, आशफा रियाज और रियाज फितियाना, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब आलमगीर, राशिदा यकूब और शेख यकूब और कई दूसरे जोड़े शामिल हैं। लेकिन एक जोड़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे काबिल कदर है, जिसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खिदमत दी हैं। वो जोड़ा है नवाबजादा लियाकत अली खान और बेगम रायना लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 में इंडिया के शहर करनाल में पैदा हुए। लियाकत अली खान कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत के नामों से जाने जाते हैं। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। उनका शुमार तहरीक पाकिस्तान के अजीम लीडरान में किया जाता है। लियाकत अली खान की अहलिया 13 फरवरी 1905 को इंडिया के शहर अल्मोड़ा में पैदा हुई। ये पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं लियाकत अली खान की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान भी एक सियासतदान थी और ये लियाकत अली खान के साथ तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म रुकन रह चुकी हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में सफ़ीर तैनात रह चुकी हैं और ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। बेगम राना अली खान 1973 से 1976 तक सूबा सिंध की गवर्नर भी रह चुकी हैं। आपको पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे अच्छा जोड़ा कौन सा लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।